let's start with the today's lecture. So today now on page number 55, second paragraph. Yesterday we have already discussed in detail what is Satyagraha. So now today we'll read further that how Gandhiji practiced, first of all at small level. He wanted to see that what is the response of the Indians to Satyagraha. So after arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movements in various places. So first of all, in 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. So first of all, 1916, and yesterday I told you that arrival of Gandhi in 1915. So he went to Bihar and there specifically in Champaran, and there to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Now, what was that oppressive plantation system in Champaran in 1916 in Bihar? Clear? Day before yesterday, I made a reference of indigo plantation. Is it clear? I had made a brief reference of indigo plantation. We know that industrialization had come in Britain in 1750, much before the other countries. Clear? And the Britishers required raw material for their industries. हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक चैप्टर करेंगे, अदरवाइज आपने 8th में भी किया हुआ है कि सबसे पहले एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री है. तो इसी तरह जब यूके में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई थी, तो एट दैट टाइम द ब्रिटिशर्स रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स टू फीड देयर इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो उनमें से एक रॉ मटेरियल उस टाइम पे बड़ा पॉपुलर हुआ जो कि था इंडिगो, अ काइंड ऑफ अ डाई. ठीक है, आपको पता होगा कि ये ब्लू कलर का होता है एंड एस्पेशली इट वाज यूज्ड टू डाई डेनिम. ये जो आप डेनिम जीन्स पहनते हो ना आजकल ब्लू कलर की, इसकी इन्वेंशन उस टाइम पे हुई थी. I'll tell you a small incident related to this कि ये कैसे इसकी इन्वेंशन हुई. What happened that the soldiers, right, they needed some very rough and tough cloth and a color which would not get dirty very soon. And with the coming of industrialization, workers also required such kind of a cloth and color. तो इसकी इन्वेंशन होते होते जब देखा उन्होंने इसको इसमें डाई किया, इंडिगो इज दैट ब्लू कलर, उसमें डाई किया तो उन्होंने देखा कि ये क्लॉथ भी अच्छा है और प्लस ये बड़ा रफ एंड टफ है. अब आप देखो जीन्स, फुल वीक यू आर वेयरिंग जीन्स, यू डोंट वॉश देम, यू डोंट नीड टू वॉश देम. क्लियर? तो ये जो डेनिम जीन्स का ब्लू कलर आया है, ये उस टाइम से ही आया है इसमें ब्लू कलर. तो हाउ, व्हाई द Champaran plantation workers were protesting? Because indigo, what did the Britishers do? They forced the farmers to grow the crop of indigo. ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या था कि जब फार्मर्स इंडिगो ग्रो करते थे और जब उसको हार्वेस्ट करते थे, उसके बाद सॉइल बहुत देर के लिए इनफर्टाइल हो जाती थी. क्लियर? एंड एज अ रिजल्ट द फार्मर्स could not grow any kind of food crops in that soil. जब farmers उसमें कोई food crops नहीं grow कर सकते थे, तो naturally it would lead to food shortages. अब आप एक और आपने पढ़ा था subsistence farming, ये मैं because ये इसके साथ connected है, that's why I have to tell you. Subsistence farming, और इंडिया में उस टाइम पे सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत पॉपुलर थी, जिसका मतलब था कि एक फार्मर जो भी क्रॉप ग्रो करता था वो उसकी फैमिली के गुजारे के लिए सफिशिएंट था.
Suppose a farmer was growing two staple crops, that is rice and wheat. उसके पास एक छोटा फार्म लैंड है, उसमें वो अपना वो ग्रो करता था, अपनी और फैमिली का गुजारा कर लेता था. हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसीलिए कहते हैं, हम उसको कमर्शियल नहीं कहते. जब हम वर्ड कमर्शियल फार्मिंग यूज कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि एक फार्मर है, वो लार्ज स्केल पे फार्मिंग कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए भी रख रहा है, और जो उसके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो बाजार में बेच रहा है, मार्केट में बेच रहा है, तो वो कमर्शियल हो जाता है. तो उसको हम कहते ही कमर्शियल फार्मिंग है, राइट. व्हेन वी आर सेइंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग मींस अपने गुजारे के लिए. तो व्हाट हैपेंड व्हेन द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, clear, and it was a cash crop for which the Britishers were making money. Britishers were making a lot of money, not the farmer. And they were sending this to various factories in England and other places of Europe from there where they could get profit. और हमने पहले ही कल किया था ना इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? उनको पैसा चाहिए था. They needed more and more money. तो इसलिए उन्होंने हर तरह से कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जिनसे उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले. But they did not care for the condition of the peasants who now could not grow food crops in their farmlands because the soil went infertile. आपको याद है हम soil की fertility maintain करने के लिए crop rotation पढ़ते हैं. Then we read about कि कुछ ऐसे plants हैं जो जैसे ये जो नाइट्रोजीनियस प्लांट्स होते हैं जो सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं, हम फिर वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे. क्लियर. सो महात्मा गांधी in 1916 टू वेंट टू चंपारण. ये आपको मैंने इसका बताया कि इसका रीजन क्या था, महात्मा गांधी का वहां जाने का रीजन क्या था. ठीक है. फिर वहां जाके महात्मा गांधी ने successfully सत्याग्रह practice किया. सत्याग्रह means he involved the peasants in a protest, a peaceful protest, and was successful. Then further in 1917, in the next year, then in 1917, he organized a satyagraha in the support of peasants of खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. इसको हम दोनों कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, चाहे हम खेदा भी कह लेते हैं, इसको हम खेड़ा भी कह लेते हैं. सो सिंस इट्स अ प्रॉपर नाउन, सो बोथ वेज इट इज करेक्ट. यू कैन प्रोनाउंस इट आइदर वेज. खेड़ा भी कह सकते हैं और खेदा भी कह सकते हैं. इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक. अब दो चीजें होंगी, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर हो गया. अब देखो वहां पर क्रॉप फेलियर तो हो ही जाएगा, उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि सॉइल सी इनफर्टाइल हो गई इंडिगो ग्रो करने के कारण, तो क्रॉप जितना चाहिए था वो ग्रो ही नहीं कर रहा. सेकंड रीजंस कैन बी एनी वेज ऑफ द नेचर. क्लियर. एंड प्लेग एपिडेमिक. Plague is a kind of a disease. Epidemic, we know that the spread of a disease at one given time among large number of people and in a larger area. The peasants of Kheda could not pay the revenue. Clear. And were demanding that revenue collection be relaxed. अब land revenue क्या होता है? ठीक है. Land revenue is a kind of a tax, right, which a farmer has to give according to the percentage fixed by the government. Clear. On the total production. ठीक है. What is land revenue? Land revenue is a kind of a tax which is decided by the government according to whatever percentage it has been decided. A farmer has to pay that to the government. Now what happened? That there was a crop failure already. There was plague epidemic and the farmers did not get the expected production. So when we have not got the expected production, naturally we cannot pay the revenues also. So the peasants were demanding that they did not, it is not there that they don't want to pay the revenue. What did they want? They want that it should be extended. उसको relax कर. Relax का मतलब है कि जो suppose हमने मार्च में revenue collect करना था farmers से, उसको हम सितंबर में कर ले, अक्टूबर में कर ले. You know this condition came here due to COVID-19 also. Economic condition effect हुई.
ये अब हम रिलैक्सेशन जो सारी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? Somewhere or the other they are concerned with the economic, financial aspect of the people. Clear? So what the people demanded, that they demanded relaxation, that they will pay, but for the time being it should be relaxed. So similarly, again, Mahatma Gandhi went over there, he conducted that peaceful protest, and again he was successful. आपको रीजन और ईयर और कौन सी जगह है, बस इतना पता होना चाहिए. That much is sufficient for you, and later on we will do a map also on these locations. Next, in 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a Satyagraha movement amongst cotton mill workers. Now the third is in 1918. Here, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize Satyagraha movement amongst cotton mill workers. Now, what was the reason? There he sat on a hunger strike. There was a dispute between the workers and the owners. Clear? Mill workers. Mill का मतलब factory. पहले हम उसको mills कहते थे ना. So that's why the word mill is being used. So cotton mill workers and the owners, ठीक है, were having a dispute. What was the dispute? The workers wanted a raise in the wages. ठीक है, जो उनको wages मिलती थी, ठीक है, वो चाहते थे कि उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए. But the owners of the cotton mill in Ahmedabad were not agreeing to the demands, and therefore Mahatma Gandhi went there. He sat on a hunger strike over there, and finally the owners relented and the workers got the desired wage raise. Clear? So 1916, 17 and 18 were very important years as far as starting of the Satyagraha movement was concerned. Gandhiji practiced Satyagraha in 3 places, Champaran, Kheda and Ahmedabad, and he was very happy with the response. So now he was sure that if he practiced Satyagraha, clear? Further, अब इसको एक mass movement बनाना है. पहले he was testing at different places where he had already tested in South Africa, but this experiment was to be done in India as well. So now he had successfully, over the 3 years, he practiced this at different locations in India, and very successfully he could get the positive result by practicing non-violent method, that is Satyagraha. So I hope this paragraph is clear to you. And on the other side, source A, we have there, please see the third paragraph, that is Satyagraha is a pure soul force. Truth is very substance of the soul. That is why this force is called Satyagraha. And this much is enough definition. बाकी मेथड क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमने कर लिया. उसका अगर आपको एग्जांपल आ जाता है कि व्हाट इज सत्याग्रह, जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. बहुत बार सीबीएसई में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ठीक है, तो हमने 1916, 1917 और 1918 के जो हमने ये 3 जगह के ये डिटेल्स हमने पढ़ी कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड हाउ ही प्रैक्टिस्ड. तो ये क्या है? ये एग्जांपल्स है. किसके? सत्याग्रह. किसके? बाय महात्मा. ठीक है, सत्याग्रह की डेफिनेशन हो गई और उसके बाद आपका प्रैक्टिसिंग ऑफ सत्याग्रह एट दीज 3 लोकेशंस व्हिच गिव कॉन्फिडेंस to Mahatma Gandhi that he can now successfully increase the span of this movement in India as well. Clear? Now see, there is an activity. इसी पेज पे नीचे बॉक्स में देखो दिया हुआ है, read the text carefully. Okay, this I am telling you daily. Why did Mahatma Gandhi, what did Mahatma Gandhi mean when he said Satyagraha is active resistance? क्लियर? कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था, नॉन वायलेंस एंड वायलेंस का डिफरेंस बताया था.
कि हम जब वायलेंस करते हैं या हम वो मेथड अडॉप्ट करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस जो है वो हम नॉन वायलेंट वे से कर रहे हैं, सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस इट शुड बी थॉट दैट इट इज पैसिव, कि ये लोग जो ऐसी मूवमेंट को फॉलो करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, रादर इट इज मोर टफ, ठीक है, ये उससे भी ज्यादा टफ है, ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स योर इनर फोर्स, योर कंट्रोल। आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, आपको अपना एग्रेशन कंट्रोल करना है, ठीक है, पर उसके बावजूद भी आपको लड़ना है, ठीक है। जैसे आप कह लो आपके दोनों हाथ बांध दिए जाएं, ठीक है, कि आप कोई इसके साथ एक्शन नहीं कर सकते हो, यू कांट डू बी एग्रेसिव, बट आपके मन से, आपके वेज से आपने इस चीज को हराना है, इस चीज को डिफीट करना है। तो ये एक एक्टिव रेजिस्टेंस ही है, रादर इट इज मोर डायनामिक। क्लियर? इसका इम्पैक्ट हम आगे आगे जब हम पढ़ेंगे, दैट व्हाट वर द वेरियस मेथड्स adopted by Gandhiji and how successfully he completed these movements and took India towards its independence, right? So next is now 1.2, that is the Rowlatt Act. So this Rowlatt Act was named so after the president. Clear? He was Mr. Rowlatt. So उनके नाम के ऊपर ही जो था इसको Rowlatt Act इसका नाम रखा गया. Now Britishers saw the success of Mahatma Gandhi in these 3 years, in these 3 events जो हमने 16, 17 और 18 के पढ़ लिए हैं. So they were disturbed that this way Mahatma Gandhi will continue to expand and the Britishers will get an enemy who can face them. अब Britishers को क्या था कि they are a superior power. हमने जब imperialism और colonialism की definition की तो उसमें हमने क्या किया, that colony किसको कहते हैं, what is imperialism, what is colonialism, right? Subjugation of a weaker country by a stronger power. Subjugation of a weaker country by a stronger power. इसकी definition ही ये है. So it means that the Britishers thought themselves to be much superior than the Indians. Clear? So when they saw that Mahatma Gandhi, one after the other, he was getting successful, so they also thought that they need to plan or decide their strategy. So let's come to the next, that is 1.2, the Rowlatt Act, embodied with this success. Now, what does this word mean? That Gandhiji was encouraged. ठीक है, उन्होंने क्या करा, सत्याग्रह का मेथड इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्राई किया, और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ठीक है, तो ही वॉज वेरी सक्सेसफुल. जैसे आप क्या होता है, जैसे आप न्यू कोई गाड़ी चलाना सीखते हो, ठीक है, एक्टिवा चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, एक दो बार आपसे चलती नहीं है, पता नहीं लगता है आपको गियर और क्लच कैसे यूज करना है, कार चलानी सीख रहे हो, ठीक है, 2-4 बार बंद हो गई, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब आपको पता लगता है कि हाँ ठीक है, पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट और सेकंड गियर में ड्राइव करते हो, जब आपको पता लग जाता है कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आज मैंने ठीक चलाई, तो फिर आप थर्ड और फोर्थ गियर, और उसके बाद तो फिर पता ही है आपको, then speed is no limit and you enjoy driving a lot. तो इसी तरह आप क्या हुआ, आपने छोटे जो 2-3 ट्रायल्स किए, उसके बाद आप उससे एनकरेज हो गए, आपने कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, that I can drive properly. Okay, so similarly, when Mahatma Gandhi successfully practiced in 1916, 17 and 18, he was also encouraged and he was very happy with the success. Now he wanted to expand this method further. Embodied with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act in 1919. Nationwide, ठीक है, अब वर्ड ही आ गया उधर, nationwide means कि पूरे देश में, all over. Against what? Against the Rowlatt Act which the Britishers were going to pass.
क्या था? दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड। हरिडली पास्ड मैंने आपको बोल दिया है कि जो ब्रिटिशर्स थे देवर इन अ वरी, ठीक है, कि अब महात्मा गांधी इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं तो वेरी सून द इंडियंस विल आल्सो बी एनकरेज्ड टू अपोज देम, सो हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, तो इसके आगे इंपीरियल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम जो ब्रिटिश क्वीन थी, किंग थी, उसको रॉयल मानते थे, तो जो भी रॉयल के साथ वर्ड कनेक्टेड होता है, रॉयल्टी के साथ कनेक्टेड होता है, तो उसके हम उसके लिए इंपीरियल वर्ड यूज कर लेते हैं। Imperial Legislative Council, despite the united opposition of the Indian members, तो इंडियन मेंबर्स जो थे उन्होंने इस रॉवलेट एक्ट को अपोज किया, बट द ब्रिटिशर्स डिड नॉट लिसन टू इट एंड दे पास्ड इट। गेव, अब क्या था, व्हाट वाज रॉवलेट एक्ट? It gave the government enormous power. Enormous का मतलब होता है, एक होता है big, ठीक है, एक होता है enormous, उससे भी बड़ा, means बहुत ज्यादा, enormous powers to repress political activities. Political activities को दबाने का power, clear? repress का मतलब होता है दबाना। Political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. तो ये क्या कर सकते थे? अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे? जिसको भी सोचते थे कि हाँ ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, इसको पकड़ लो और इसको जेल में बंद कर दो। कब तक? 2 साल तक, विदाउट एनी ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि सपोज अगर पुलिस को लगा कि कोई पर्सन क्रिमिनल है, ठीक है, इसने कोई क्राइम किया है, किसी तरह का क्राइम से 2 टाइप्स, सिविल भी होता है एंड क्रिमिनल होता है। सपोज अ पर्सन इज इन्वॉल्वड इन द डेथ ऑफ समवन, कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर, जब हम स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स हम उनको कहते हैं वो लोग जो किसी ना किसी तरह से एंटी गवर्नमेंट या एंटी कंट्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन थे ब्रिटिशर्स की नजर में? वो लोग जो कि किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व थे लोगों में नेशनलिज्म की स्पिरिट जगाने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए कि दे नीड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो उनको जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या मानते थे? क्रिमिनल्स, अपराधी। तो इसी तरह उन्होंने इन चीज को ध्यान रखते हुए रॉवलेट एक्ट बना दिया। उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो किसी को पकड़ के जेल में डालते हैं 2 साल के लिए, ठीक है, तो उसको उनको किसी का ट्रायल करवाने की जरूरत। ट्रायल मीन्स कि अगर सपोज किसी को प्रिजनर पकड़ा है तो उसके पास भी पावर होती है कि वो एक लॉयर के पास वो अपना एक लॉयर कर सकता है, और जैसे कि पुलिस उसको जस्टिफाई करेगी कि उन्होंने इसको क्यों पकड़ा, एक पर्टिकुलर पर्सन को क्यों पकड़ा और उसको जेल में क्यों बंद किया, इसी तरह जिस पर्सन को पकड़ा है वो भी अपने लॉयर के थ्रू, ठीक है, सो दैट पर्सन कैन ऑल्सो हैव अ लॉयर। बट ब्रिटिशर्स ने ये इसमें से प्रोविजन ही निकाल दिया। They removed this provision that no person who was caught by the British and put in prison, it means for 2 years, that person cannot have or employ or have any lawyer to fight against him with the British. Clear? तो ये injustice है। कल को किसी को भी पकड़ के आप जेल में डाल दो 2 साल के लिए, ठीक है। So the Indian members protested, but the Britishers did not listen to it and they passed the Rowlatt Act. Clear? So I hope this is clear to you. So let's move further. Detain political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted a non-violent civil disobedience against such unjust law. तो मैंने आपको बताया कि ये unjust क्यों था। ये जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है वो ये बताई है कि इसको हम अनजस्ट लॉ, इसको रॉवलेट एक्ट को अनजस्ट लॉ क्यों कह रहे हैं, ठीक है।
which should which would start with a हड़ताल on 6th April. तो जब अब गांधी जी ने देखा कि ये ब्रिटिशर्स हैव नॉट एग्रीड टू द प्रपोजल्स ऑफ द इंडियन मेंबर्स इन द काउंसिल, सो ही प्रपोज्ड दैट they will start a civil disobedience. इसको हम civil disobedience क्यों कह रहे हैं? Obedience का मतलब है किसी का कहना मानना, ठीक है? Disobedience उसके खिलाफ जाना. Civil disobedience क्यों कह रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि हम लड़ाई तो कर ही नहीं रहे, हम फाइट तो कर ही नहीं रहे हैं. So what do we want? That we are going to protest against the Britishers in a non-violent way. किसके? Against the passing of the Rowlatt Act, which was unjust. Right? Now, what was to be done? ठीक है, ये जो हम 6 अप्रैल को हड़ताल मैंने आपको बताया टुवर्ड्स द कंट्री, हम कंट्री की तरफ से बात कर रहे हैं. तो जो प्लान हुई थी, what was to be done? Rallies were organized in various cities. हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि नेशन वाइड. अब क्या है, अब गांधी जी वांटेड टू एक्सपैंड. जो भी कोई मूवमेंट होगी उसको गांधी जी मास मूवमेंट बनाना चाहते हैं. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था. Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops. Civil disobedience, right? And shops closed down. अब क्या हुआ, हमने कोई वैसे लड़ाई नहीं की. हड़ताल में हमने क्या एक्शन लिया? जैसे आप देखो बंद की कॉल होती है, अभी रिसेंटली जो बंद की कॉल होती है उसमें क्या है, ऑल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो जाती हैं, बसेस चलनी बंद हो जाती हैं. अब जैसे रेलवे वर्कशॉप्स पे स्ट्राइक हो गई, शॉप्स बंद हो गई, ठीक है, और ऑफिसेस बंद हो गए. तो देन व्हाट हैपेंस? एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. सब चीजें बंद हो जाती हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती है. हम कह रहे हैं कि लोग आ जा नहीं रहे हैं. इसका क्या है? इसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक ड्रॉबैक. सारा दिन कोई बिजनेस नहीं हुई, सब कुछ बंद रहा, ठीक है, जो लोग करते थे. तो इसका इफेक्ट किसको जाना था? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उस टाइम पे जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे थे वो इंडियंस को कम और ब्रिटिशर्स को ज्यादा हो रहे थे. तो गांधी जी थॉट ऑफ द सिस्टम कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को इसका एक सेटबैक दिया जाए कि उनको इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जो वो बनाना चाहते हैं उन्हीं को हम पिच करें. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज alarmed by the popular upsurge. Alarmed means घबरा जाना, वो डर गए. By the popular upsurge. Upsurge का मतलब है कि गांधी जी की कॉल पे जिस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स देखने को मिला ब्रिटिशर्स को. क्लियर? गांधी जी ने कॉल जो दी थी कि वी विल क्लोज, जो हमने अभी पढ़ा, रैलीज वर ऑर्गेनाइज, शॉप्स वर क्लोज, रेलवे वर्कशॉप्स वर क्लोज. तो द ब्रिटिशर्स वर अलार्म, उनको चिंता हो गई, बिकॉज दे सॉ दैट गांधी जी हैज गॉट अ वेरी एक्टिव response. Alarmed by the popular upsurge and scared that the lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. So communication lines, why? Because if you are blocking the railways, you are shutting down the post offices, obviously no communication will take place. उस टाइम पे ऐसे मोबाइल्स तो होते नहीं थे कि किसी ना किसी वे आउट से आप मैसेज सेंड कर दो या किसी से यू वांट टू रीच समवन. सो दैट कुड नॉट हैपन. सो द ब्रिटिशर्स वर, व्हाट दे कुड डू, they could only use force. So clamp down का मतलब है कि उन्होंने अब सोचा कि ये जो नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट कौन है? वो लोग जो अपने देश को इनसे स्वतंत्र करवाना चाहते हैं, नेशनलिस्ट. ओके, अब इन पे सख्ती से पेश आया जाए. क्लैम्प डाउन ऑन दीज नेशनलिस्ट्स. क्लियर? सो टुडे वी विल डू दिस मच ओनली, दैट what action started as a result of practicing of satyagraha in India, right? So please, I had asked you that put your queries in your in the chat box, plus briefly I will explain the homework to you.
I have planned 3 activities. Okay, rest in the detail I will put in the WhatsApp group. Now 3 activities are there. I will divide roll number wise. You have to do it in your fair notebook. Clear? Already you have done 2 questions. Clear? And now 3 activities are there. I will just explain how all the 3 activities are to be done. किसने कौन सी एक्टिविटी करनी है, that we will see roll number wise. You will get it in the group. Now first is poster on nationalism. आपने क्या करना है, आपकी नोटबुक, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट मेक स्मॉल नोटबुक्स. जो हमारा रजिस्टर साइज की नोटबुक होती है, यू विल मेक दैट नोटबुक ओनली. एंड उसमें आपने पेज पे, कॉपी के पेज पे ही एक पोस्टर बनाना है नेशनलिज्म पे. क्लियर? वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आपने किस तरह से नेशनलिज्म की स्पिरिट को डिपिक्ट करते हुए आपने एक पोस्टर बनाना है. इफ यू वांट यू कैन राइट स्लोगन आल्सो इन इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी. आप किसी भी तीनों लैंग्वेज में से किसी पे भी उस पे आप पोस्टर बना सकते हो, लिख सकते हो स्लोगन. सेकंड इज स्टोरी बोर्ड. आपने एक स्टोरी बोर्ड बनाना है. स्टोरी बोर्ड का क्या मतलब है, जैसे आपने कई बार कॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे 4 कॉलम्स बने होते हैं, एक डायलॉग से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हमें पता चलता है इवेंट्स. अब हमने कौन से इवेंट्स पढ़े हैं, 1914 से लेके हम 1919 पे आ गए हैं. ठीक है ना? हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पढ़ा था 1914, और हमने 1919 रॉबलेट एक्ट तक कर लिया है. ठीक है? तो 1914 से 1919 तक लेके आपने एक अपनी क्रिएटिविटी शो करके एक स्टोरी बोर्ड बनाना है कि 1914 में क्या हुआ, फिर 15, फिर 16, 17, 18 एंड 19. इसका एक अच्छा सा स्टोरी बोर्ड बनाना है जो हमें ये इवेंट्स के बारे में बताए कि 1914 से लेके 1919 तक क्या हुआ. इसको ही हेडिंग होगी स्टोरी बोर्ड. ओके. नाउ थर्ड एक्टिविटी इज दैट कैलीग्राफी. कैलीग्राफी में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वर्ड नेशनलिज्म को एक बड़े ही अट्रैक्टिव वे से लिखना है. ओनली वर्ड नेशनलिज्म. क्लियर? किसी भी अच्छे अट्रैक्टिव वे से आपने नेशनलिज्म को लिखना है. ठीक है? और आपने सब बच्चों ने ये काम सिर्फ अपनी नोटबुक के पेज पे ही करना है. कोई एक्स्ट्रा शीट अटैच करने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग शीट पे काम करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? किसी ने वो इस पे वो जो आपको लगवा देते होते हो कोई ग्लिटर्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना है. कुछ ऐसा, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, योर वर्क शुड बी वेरी वेरी सटल, ओके, एंड अट्रैक्टिव. व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इट शुड बी क्लियर. अगर हम क्लास में उसको शो करते हैं, मुझे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि यस, एंड आई विल चूज द बेस्ट वर्क्स and I will circulate, and I will also give them gift from my side, and I will also circulate the best work only first in all the 3 activities in the group also, right? And I told you earlier also कि अब आपकी जो checking होनी है notebooks की, वो physical होनी है. So once you keep your complete your assignment, so then we will decide the day on which you have to submit your notebooks. Kamaljeet sir, any queries in the chat box? जी मैम, बिल्कुल है मैम. वन क्वेरी मैम. We can stop recording now. Okay, right, ma'am. Thank you.